Radhe Radhe everyone. Thank you and welcome to my channel. If you're first on my channel, thank you so much for coming. I am Shivani Gupta and I am a marketing person by profession, and here I'm just sharing few bit of knowledge that I have which can help you in improving your day, your life, might be your career also. So in this video today I'm going to share 10 things which you can definitely add in your daily life, and this is going to help you to build your day in a better way. There will be a lot of improvement and you will feel more grateful about when you do these 10 things in daily life. So before starting, if you have not subscribed my channel till now, please do subscribe for the daily updates, and let's start. So while we are starting, first thing first, that I have already journal what I'm going to tell you, so I will go one by one, and the sequence that I'm telling you, I will suggest that you should do these things in this sequence on daily basis, because when you start your day with these things, you will make a starter or a package, or you are building your day if you do in the starting of the day all of these things. So first thing first is pray. So first thing is like what I do when you wake up, just pray to God and say thanks, that thank you God for today, for new day, and here I am going to do a good karma, new karma, or I mean whatever prayer that you say on daily basis, but make sure that you are thanking and praying for yourself or somebody, parents, whosoever you want to add on. Number two is manifestation. So whatever your daily goals you have about your career, about your health, about your parents, about anything, about your big goals, small goals, daily goals, you just manifest them. And there is a tip while you do the manifestation: do it in the loud volume. Speak your manifestations like you're speaking to your friend, right? Like you're speaking to the universe. Nobody's listening you, but they are listening you. Thank you. Now number three, exercise. Of course everyone knows it is very very important. If you cannot make your body walk, it is not going to talk to you later. Remember this thing. So it is very very important, 15 minutes to half an hour exercise. If you feel lethargic, make sure you're doing breathing exercise, and just 10 to 20 jumping jacks, that will also help. So start doing it. Start with small, but make sure you're doing it. The point is you're doing it. So these things which I'm telling you to add in your daily routine I'm saying. Okay, so number four is we have meditation. So meditation for people is like very big words and all. Cut the crap. The point is you need to sit and you need to focus on your breathing. This is absolutely simple, doable meditation. Anyone can do it. If you're taking 10 breaths, you have to focus on your breath. First breathe, second breathe. While you are taking the breath, you can take the pause. You can count 1 2 3 4. You need to hold your breath. So this is how, while you focus on your breath, this is one kind of meditation. I mean, when I'm unable to focus like meditation, I just focus on my breath. Even if I do 10, I am happy because my mind gets calm. And meditation is all about your mind should not be talking. You should be focusing on something. That's we call meditation, right? Fifth is very important, healthy breakfast. कुछ भी आप खाओ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब मैं बहुत विश्वास रखती हूँ हेल्दी खाओ. अभी मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक शॉर्ट्स में बताया था, माई सिस्टर गॉट शी वॉज नॉट वेल, देर वॉज इंसिडेंट दैट हैपेंड विद हर. तो फैमिली में ना जब कुछ ऐसा होता है तो देन यू रियलाइज यार ये तो, फिर डॉक्टर बोलता है नारियल पानी पियो, पानी ज़्यादा पियो, ORS ये वो, तो वो ना एकदम से आपको समोसे कचौड़ी छोले भटूरे से ना आप अपने आप दूर हो जाते हो. एक चीज़ समझ में आ गई, पहले भी आ चुकी है जब मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था कुछ साल पहले, बट यार गाइस प्लीज़ हेल्दी खाओ. मतलब मैं जब से घर से दिल्ली आई हूँ और मैं ये बाहर का मुझे खाना पड़ रहा है, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड. आई मीन healthy food is best. And here I would like to tell you in between my one of the observation. I went to market today. Matlab I was so much in
क्या बोलूँ, मैं शौक में थी। मैं, लोग कितना बाहर का खाते हैं यार। मतलब अब तुम इतना ज्यादा बाहर का खाओगे, तुम रोज खाओगे, तुम अब तो चलन ही नहीं है कि बंदा घर से खाना पैक करके लेके जा रहा है। शॉपिंग करने जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, बाहर ही खा लेंगे ना हम तो। मतलब चलन ही नहीं है इस चीज का। आई वॉज सो शॉक्ड बिकॉज ऑफकोर्स उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि अब मैं घर का खाना ज्यादा खाने लगी हूँ, बाहर का मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लस क्योंकि अब मैं सात्विक फूड खाती हूँ, तो भाई सब इतना बाहर का खाते। अब जब तुम इतना बाहर का खाओगे तो डायबिटीज, फूड पॉइजनिंग, पानी की कमी, मतलब क्या नहीं होगा। इसलिए आदमी 35 साल की उम्र में मर रहा है, 30 में मर रहा है। मतलब यार बाहर का खाना, तेल, खैर ये अलग ही टॉपिक है। बट आई एम so much concerned after looking at people around me eating. Oh god, I hope people will be healthy. So guys, I'm literally like emphasizing you, प्लीज हेल्दी खाना खाओ और ब्रेकफास्ट अच्छा एकदम राजा की तरह करो, पेट भर के ठूस लो। हिंदी में जो कहते हैं ना, ठूस लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। नाउ सिक्स्थ इज रीड, my favorite. I mean, I'm still sitting with my book. So read at least 15 minutes. If you cannot do 30 minutes, count the pages, 5 pages, 2 pages, start reading. I'm telling you, the day you will develop this habit, you will feel luxury, calmness, peace. I mean, whatever word I would say. My background in a very small nutshell, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता था। मतलब मैंने जो मेहनत की है ना, वो अलग ही स्टोरी है, कभी किसी और दिन बताऊंगी। बट आज मैं बुक्स पढ़ती हूँ और ये मेरी अपने आप ही एक हैबिट बिल्ड हो गई पढ़ते पढ़ते। तो प्लीज़, मतलब बहुत बहुत अच्छी आदत है, आई स्वेयर। हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पर 15 मिनट से 30 मिनट पढ़ो। जरूर पढ़ो, अकेले बैठ के कुछ भी रीडिंग करो। ओके, नाउ सेवेंथ इज जर्नलिंग। अपने जो थॉट्स हैं ना आपके, उनको लिखो, कुछ भी, अच्छा बुरा, पूरे दिन में क्या हुआ, मम्मी पापा ने क्या कहा, आप क्या कहना चाहते थे, आप बात कर पा रहे हैं, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने गुरुजी को कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं सुन रही है, कोई भी जो आपके थॉट है, आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, भाई आप पेपर पे लिख दो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आप जब तक अपनी राइटिंग खत्म करोगे ना, एंड तक लिखते लिखते आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब लिखना इतनी अच्छी चीज़ है। सो जर्नलिंग करो, बहुत ज़रूरी है। कीप अ डायरी विद यू ऑलवेज। Number 8, my favorite, laugh. Smile as much as you can. I mean, just smile. और अगर आपके पास कोई नहीं है, आपको हंसी का कोई कारण नहीं मिल रहा है, एक ना लाफिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको लाफिंग बुद्धा बनना होता है। ऐसे करके आप यूट्यूब पे देखना, आपको मिल जाएगी लाफिंग बुद्धा एक्सरसाइज। आप उसको करो। मतलब आप जब उसको देखोगे ना, आपको उसी में इतनी हंसी आ जाएगी। पहली बात तो ये। फिर जब उसको करोगे तो यू विल फील यू आर इन दी अनदर यूनिवर्स। आई एम टेलिंग यू, इतना मजा आता है उसमें, इतना मजा, हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है, इतना मजा आता है। नाउ नंबर 9 इज टॉक टू योर पेरेंट्स। गाइज, वी ऑल आर डे बाय डे वी आर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर लाइक दे आर गेटिंग ओल्डर। तो जितना आपको लगता है ना कि आप बड़े हो रहे हो, आपको शांति चाहिए, अब हमको सबसे दूर रहना है, या फिर अब तो मेरा यही बॉयफ्रेंड है, यही पति है, या मैं बहन के साथ ही ठीक हूँ, इसके साथ ठीक हूँ, नहीं। आपके जो माँ बाप है ना, जब आप इन्नू से थे, वो तब से आपके साथ हैं। अब जब वो ऐसे हो रहे हैं और आप भी ऐसे हो रहे हो, तो आपको उनको संग लेके चलना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पूरा पूरा दिन निकल गया, आपने फ़ोन ही नहीं किया उनको, है ना, उनके फ़ोन आ रहे हैं, आप फ़ोन काट रहे हो। गाइज लिसन, you will regret if you're not spending time with them right now. I'm telling you, do not do this at all. वो हार्श हैं, उनको नहीं समझ में आ रही है, आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उनसे बात करनी है, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते हैं। आप कभी भी देखना, ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, आपके पेरेंट्स किसी से बात नहीं करते। वो अपने मन की बात एक दूसरे से नहीं कह रहे, वो आपसे ही नहीं कह रहे। प्लीज़ टॉक टू दैम, दे नीड समवन टू टॉक। एंड स्पेशली पेरेंट्स बच्चों को अपनी बात नहीं बताते हैं, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप एक ऐसा कंफर्ट जोन उनके लिए बनाओ, सो दैट दे कैन कम टू यू, दे कैन टॉक टू यू। ओके, सो नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टॉक टू योर पेरेंट्स एवरी डे। Number 10, my favorite, I wish everyone should do this. As Guruji is saying, do satsang for 10 to 15 minutes. Take the majira, ढोलक, just do the speaker. मतलब उन्हीं का कोई भजन बजा लो, जो आपको पसंद है, सत्संग कर लो, बस कर लो, डांस कर लो सत्संग में, जो करना है करो। गाइज, यू विल फील एंड द लेवल ऑफ
हैप्पीनेस, शांति, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं शब्दों में नहीं बता सकती इस चीज़ को। आप करोगे ना तब आपको अच्छा लगेगा। तो ये जो मैंने 10 चीज़ बताई हैं बहुत ही आसान है, बहुत छोटी छोटी है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप जब करना शुरू करोगे ना, आप लिस्ट बना लो, ये चीज़ें 10 मुझे करनी है, कहीं पे भी जहाँ पे आप रोज़ देखते हो, बाथरूम में, घर में, कमरे में, डैशबोर्ड पे, कहीं पे भी, बस आपको करना है। मैंने जो सीक्वेंस बताया वो मेरा है, आप अपना सीक्वेंस बना सकते हो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। और जब आप इसे फॉलो करो, मतलब हम कैसे कनेक्ट हैं, हम यूट्यूब से कनेक्ट हैं। आप मुझे कमेंट्स में करके बताना कि शिवानी मैंने ये फॉलो किया, मुझे अच्छा लग रहा है, और आपको सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सी एक्टिविटी अच्छी लग रही है जिसने आपकी लाइफ चेंज की है या फिर आपका डे चेंज किया है। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। तो ये है आज के लिए, आई होप ये आपकी मदद करे। और मैं फिर कहूँगी, आप इनमें से अगर 8 एक्टिविटीज़ भी अपने दिन में करते हैं, यू विल सी द चेंज फॉर श्योर। I am seeing my life changing and I am absolutely happy. Like, I'm the happiest person on this earth right now. Okay, so I want you also to be happy. Thank you so much for watching. Again, खुश रहो, मस्त रहो, राधे राधे।